Hello everyone, I hope you are doing well. Myself Manjula. Today we will start the part B book of class 12th political science, that is politics in India since independence, and we are going to start the first chapter of that book, that is challenges of nation building. Okay, this is part 1. Let's start. See, in this particular chapter, we are going to analyze about the various challenges faced by India after independence, all those immediate challenges, long-term challenges, right? Then we will also discuss about, process of partition, consequences of partition, and problems associated with the integration of princely states. Okay, so all these things we will discuss in this chapter. Let's start with this part. Now, first of all, let's discuss about the speech, one very important speech given by Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. See, Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, at the midnight of 15 August 1947, he given one very important speech in front of the, basically addressed to the special session of Constituent Assembly. See, Constituent Assembly kya hai? That is basically assembly that was, created on 9th December 1946 in order to make the constitution for India. Okay, and Jawaharlal Nehru basically addressed the special session of Constituent Assembly. Now, where this Constituent Assembly took place? Of course, in the Central Hall of Parliament. Let me show you. You can see the inside of the Central Hall of Parliament. Now, you can see the Parliament of India map. Then I will show you the Central Hall location and that Parliament. You can see now, you can see the map. Let me zoom in. Now see here. Here we have a Parliament building. Now see here. You can see this one. This is, one of this one is Lok Sabha, Rajya Sabha, library. And the center you can see, this is the Central Hall of Parliament. Okay. I hope the map location is clear to all of you. Now see, the speech given by Jawaharlal Nehru at this special session of Constituent Assembly, the speech name you should know it, that is Tryst with Destiny. Now what does this speech, highlights? It's a long speech. मैंने starting के कुछ lines यहाँ पर mention किया, and just let me explain that. See, basically उन्होंने ये कहा था कि that long years ago हम सब ने कुछ promise किए थे that हमारी जो destiny होगी, हमने कुछ ऐसे promises किए थे that we will fulfill all those things. Okay, तो उन्होंने ये कहा कि now it's that time. अब वो वक्त आ गया कि अब हमें उसे प्रैक्टिकली उसे उन सारे promises जो हमने किए थे आपस में उनको fulfill करना होगा. ओके, एंड सिंस ये स्पीच जो था दैट वाज गिवन एट द मिडनाइट. ओके, 14 की रात को 12 बजे जब होने के बाद आपने स्पीच दिया था, दैट इज 15th हो गया, राइट? तो 15 अगस्त को जब बिल्कुल आपने रात के टाइम 12 बजे जब दिया था, जब मिडनाइट पे किया था, डेफिनेटली द वर्ल्ड विल बी स्लीपिंग. सो देन ही सेड दैट द वर्ल्ड इज नाउ वर्ल्ड स्लीप्स. व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, राइट? तो इंडिया क्या है, पूरा वर्ल्ड जो है वो सो रहा है, बट इंडिया जो है इट्स नाउ, वो इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम. इंडिया आज़ाद हो रहा है. ओके, न्यू जन्म मिल रहा है उसे, राइट? सो उन्होंने ये कहा कि एक ऐसा मोमेंट है जो बहुत ही रियली हिस्ट्री में आता है, राइट? तो इसमें क्या है, अब जो इंडिया ने जो भी उसने बहुत ज़्यादा जो उसको सप्रेस किया था, बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम इंडिया ने फेस किया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, नाउ अब वो टाइम आ गया कि अब इंडिया को उसको एक प्रॉपर जो है ऐसे पॉलिसीज, ऐसे कुछ डिसीजंस लेने होंगे जो एक ह्यूमन जो मैन काइंड है उसको वो उनके वैल्यूज़ को फुलफिल करे. ओके, और ऑफ कोर्स एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट करे जिसमें इक्वालिटी हो, जिसमें कोई किसी सोसाइटी को राइट्स का वायलेशन ना हो. बेसिकली एक बहुत अच्छा सोसाइटी एक मैंने क्रिएट करे, राइट? तो बहुत लंबी स्पीच थी, थोड़ा सा मैंने कुछ लाइन जो है उसका मीनिंग मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया. ओके, नाउ सी, ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट के टाइम पे जो कुछ ऐसे गोल्स थे जिनमें ज़्यादातर जो लीडर्स जो थे हमारे, उन सभी के कंसेंसस थे कि दैट वंस वी अचीव इंडिपेंडेंस वी हैव टू फुलफिल दीज गोल्स. ओके, सो बहुत सारे गोल्स थे. नाउ लेट्स लुक एट द 2 गोल्स गिवन इन योर बुक. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट वन? दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस we should adopt the democratic government system in our country. First one. Second one क्या है?
दैट गवर्नमेंट इस तरीके से काम करेगा दैट इट विल बेनिफिट टू एवरी सोसाइटी, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ओके, स्पेशली जो पुअर सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स है उनको तो और भी ज़्यादा इस तरीके से गवर्नमेंट को रन करना हो कि उन्हें भी उसका जो बेनिफिट मिले. ओके, इट्स नॉट दैट गवर्नमेंट इज जस्ट रनिंग इन सच अ वे दैट ओनली द अपर सेक्शन इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दैट. इस तरीके से हो कि हर किसी को उसका बेनिफिट मिले. ओके, बट अचीविंग दीज टू गोल्स वाज नॉट ईजी. नाउ व्हाई इट वाज नॉट ईजी? बिकॉज 1947 में, एज यू ऑल नो दैट, वो ऐसा पीरियड था, ऐसा ईयर था जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था बिकॉज ऑफ पार्टीशन, कम्युनल राइट्स हुए थे. Okay, so at that time that situation was very difficult. Okay, so during that difficult circumstances, of course, instantly in goals ko achieve karna it's not that easy, but still our leaders remained optimistic. They decided that with time wo sare in goals ko जिन्होंने promise किया था that they will fulfill, right? So they faced a lot of challenges implementing all the goals, achieving all the goals. Now let's look at some of the challenges that they faced. Now the first one is that the immediate challenge. आपको ये पता होना चाहिए कि immediate challenge और long term challenges दो तरीके से होंगे. Okay, for example, immediate challenge means what? यानी ऐसे challenges जो इंडिया को immediately उनको face करना होगा. ठीक है. लॉन्ग टर्म चैलेंजेस जो टाइम के साथ उनको जो है वो धीरे धीरे अपने स्टेप्स के थ्रू, अपने पॉलिसीज के थ्रू उनको फेस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी. ओके, पावर्टी को रिमूव करना, इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट रिमूव दैट इन अ सिंगल डे, राइट? ये एक लॉन्ग टर्म चैलेंज है. धीरे धीरे आपको स्टेप लेना होगा, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजीज करना होगा, फिर पॉलिसीज को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा, देन इट विल बी अचीव्ड. ओके, देन सेम वे प्रमोटिंग एजुकेशन, दैट इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म. ओके, देन अगर ये जो सबसे बड़ा जो इमीडिएट चैलेंज क्या था एट दैट टाइम, दैट वॉज कि इंडिया को यूनाइट करना. सिंस बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, उन सभी को मिला के यूनाइटेड इंडिया क्रिएट करना, दैट वाज इमीडिएट चैलेंज दैट इंडिया फेस्ड एट दैट टाइम. अब देखो और भी प्रॉब्लम क्या था, बिकॉज इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, राइट? तो उस टाइम पे ये प्रिडिक्शन था, इवन बहुत सारे लीडर्स ने द इंटरनेशनल लेवल एज वेल, दे प्रिडिक्टेड दैट इंडिया विल नॉट रिमेन एज अ यूनाइटेड कंट्री. इट्स वेरी डिफिकल्ट. They said that itna diversity in terms of language, in terms of culture, food habits, everything, they are different. Okay, so it's very difficult. A country like this will be will stay united forever, right? जैसे कि हम Yugoslavia, you must have heard, Yugoslavia divided into different parts, right? And इसी यही prediction इसका इंडिया के फ्यूचर के बारे में यही prediction था कि it will be divided into different parts. But we as Indian, we proved to the world that we in spite of having different diversity and everything, हम जो है वो united रह सकते हैं. That's something very very good about us. Okay, now so ये पहला challenge है. Now second thing is that about the second challenge was to establish democracy. Now see, अभी हमने गोल में डिस्कस किया था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना. ओके, हमें ये इस तरीके से हमें अडॉप्ट करना चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें अडॉप्ट करना चाहिए, हमने डिस्कस किया था. ओके, नाउ सी, इज दैट ईजी दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपको एस्टैब्लिश करना है? ओके फाइन, लेट्स डू वन थिंग. हमें सिंस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए तो वी कैन डू वन थिंग दैट जस्ट राइट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देते हैं ओके फाइन वी नीड द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिख कर रख देंगे प्रॉपर आर्टिकल में. Through this can we achieve the democratic system in our country? आप सिर्फ अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिख दोगे तो दैट विल बी, इट्स नॉट गारंटी कि आप पूरा अचीव कर लोगे. नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड? आपने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है, तो जिसमें हमने सभी को राइट टू वोट का ये राइट प्रोवाइड किया. एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हमने अडॉप्ट किया. रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मीन्स व्हाट? बेसिकली यहाँ पर क्या होगा दैट वी ऑल इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव. जो हम MP को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, MLA जो होते हैं, ओके, वहाँ पर हम उनको वोट करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे वो पार्लियामेंट में जाते हैं. ओके, तो वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है. ठीक है, अब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हमने ये सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, राइट टू वोट सबको दे दिया. ओके, और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश करेंगे इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया. इज दैट इनफ? नो. व्हाट इज रिक्वायर्ड? ये तो आपको करना ही है. At the same time, what is required is that we have to develop democratic practices in accordance with the constitution.
कि हमारे प्रैक्टिकल लेवल पे जो भी चीज़ें हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारे प्रैक्टिकल जो स्टेप्स हैं दैट शुड बी इन सच अ वे कि वो हम डेमोक्रेसी को प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट कर सके फॉर एवर. दैट इज़ द मेन चैलेंज. ओके, सो ये हो गया टू चैलेंजेस. नाउ यहाँ पर मैंने एक मैप दिया हुआ है, जस्ट सी हियर, दिस इज प्रिंसली स्टेट्स, और ये जो रेड पार्ट है दिस इज ब्रिटिश प्रोविंस. ओके, सो दिस आई विल डिस्कस अबाउट इन द पार्ट 2, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स का प्रिंसली स्टेट्स का हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट आई विल एक्सप्लेन दिस वन. Okay, now let's look at the third challenge. Now the third challenge was to ensure development and well-being of entire society, not only of some section. Okay, so basically यहाँ पर एक third challenge कि सभी का development हो, उसे हमें promote करना होगा. तो of course you can just think over it's a immediate or it's a long term challenge. Of course it's long term है, हमें धीरे धीरे इसके लिए जो भी necessary steps है वो लेना होगा. Now in order to solve this challenge, or you can say develop this well-being of every section society, बहुत सारे different methods लिए थे. For example, constitution में principle of equality mentioned है, okay, that everyone is equal before the law, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई rich हो, poor हो, everything you all know it very well. बहुत अच्छे से अपने क्लास 9th में 10th में 11th में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है. Okay, and then a special protection to socially disadvantaged ग्रुप्स एंड रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज़. ओके, सो बेसिकली जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स है उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल माइनॉरिटीज़, दे हैव राइट टू सेट अप देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. फाइन, दे कैन प्रोटेक्ट देयर रिलीजियस राइट्स. ऑफकोर्स वो और भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का उनका राइट्स भी दे रखा है. ओके, देन DPSP इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. DPSP क्या है? बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ओके, सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, एंड दे आर एक्चुअली इसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स मेंशन्ड है व्हिच दे स्टेट whenever they make the law they have to follow that इसमें ऐसे goals, ऐसे topics mentioned है which actually focuses on the welfare of the people. Okay, so basically इसमें welfare goals हैं, right? Now आप देखो रियल चैलेंज क्या है. रियल चैलेंज was to evolve effective policies for economic development and eradication of poverty. Okay, so real challenge क्या है कि प्रॉपर तरीके से इकोनॉमी डेवलप करने के लिए उसके पॉलिसीज को इफेक्टिवली फॉर्मुलेट करना, उसे इम्प्लीमेंट करना, एंड ऑफ कोर्स इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जो है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रियल चैलेंज. ओके, आई होप द चैलेंजेस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स लुक एट द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन. 14 and 15 अगस्त 1947, एज यू ऑल नो, सिर्फ एक देश नहीं बना था, 2 नेशंस क्रिएट हुए थे. ओके, 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस हुआ था और 15 का इंडिया को हुआ था. ओके, तो 2 कंट्रीज यहाँ पर फॉर्म हुए थे. एंड दिस बेसिकली जो ब्रिटिश इंडिया था दैट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड दिस वाज बेस्ड ऑन दी 2 नेशन थियरी. नाउ 2 नेशन थियरी दैट वाज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय मुस्लिम लीग. ओके, तो यहाँ पर क्या था, 2 नेशन थियरी, दैट सिंपल यही है कि दैट 2 नेशन शुड बी क्रिएटेड. जो मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए दैट शुड बी पाकिस्तान, एंड हिंदू पॉपुलेशन के लिए जो अदर ग्रुप्स है उनके लिए इंडिया क्रिएट होगा. ओके, तो इस तरीके से रिलीजन के बेस पे 2 नेशंस क्रिएट होंगे. एंड दिस वाज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय द मुस्लिम लीग व्हिच वाज फॉर्म्ड इन 1906 में इसका क्रिएट हुआ. मुस्लिम लीग पार्टी फॉर्म हुआ था फॉर दी ऑफ कोर्स टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, राइट. एंड कांग्रेस पार्टी जो था दैट वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस 2 नेशन थियरी. ओके, बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि दैट ड्यूरिंग दिस 1940s, ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे पॉलिटिकल ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे विच क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन दिस मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस. बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हुए थे, राइट्स भी हुए थे कम्युनल. ओके, एंड देन फाइनली ब्रिटिश played the mediating role in between them, and they decided that that partition तो होना ही है. ओके, सो दैट वाज डन. फाइन. अच्छा देखो, सो पार्टीशन अब किस बेसिस पे होगा? ऑफ कोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन. ओके, तो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी इसको फॉलो करके पार्टीशन किया, राइट. सो जो भी एरियाज जहाँ पर मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में थे दैट वाज नाउ बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड देन बाकी जो रिमेनिंग एरियाज दैट वाज बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया. ओके, बट इट प्रेजेंटेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफिकल्टी. इसने काफ़ी डिफिकल्टी इसने प्रेजेंट किया था. नाउ लेट्स लुक एट ईच वन ऑफ देम. 4 डिफिकल्टीज है, एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे. Now the first one is that
there was no single belt of Muslim majority areas in British India. Okay, so यहाँ पर British area जो है यहाँ पर in the map, यहाँ पर कोई clearly ऐसा नहीं कि that for example let's I'm taking the example that's this full belt, ये जो region है यहाँ पर पूरा जो है वो सारा मुस्लिम का है या फिर यहाँ पर है. ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से कोई clearly इस तरीके से कोई as such कोई population का demarcation नहीं था. फाइन, इन टर्म्स ऑफ दैट इस पर्टिकुलर रीजन में पूरा जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है. बट अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ दैट द टू एरियाज ऐसे थे दैट दिस वन ओवर हियर, दिस प्लेस एंड दिस वन, यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन जो था इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन दैट वॉज मेजॉरिटी जो थे यहाँ पर मुस्लिम थे. ओके, यहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ है बट मेजॉरिटी आई एम टॉकिंग. ओके, तो यहाँ पर मुस्लिम्स थे, तो अल्टीमेटली दिस वॉज डिसाइडेड दैट दिस विल बी मेड एज दी पाकिस्तान. सो पाकिस्तान का यहाँ पर टू पार्ट्स हो गया, दिस वन वेस्ट पाकिस्तान एंड दिस वन ईस्ट पाकिस्तान, एंड दिस ईस्ट पाकिस्तान बिकेम दी Bangladesh after the 1971 war. You must have studied about in contemporary world politics book. Okay, so this was the first one, and second one is that not all Muslim majority areas wanted to be in Pakistan. Okay, so Muslim जहाँ पर majority बहुत ज़्यादा था population का Muslims का, वो सारे रीजन वो ये नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान का पार्ट बने. फॉर एग्जाम्पल हियर आई मेंशन, यू कैन सी हियर, दिस इज दिस वाइट पोर्शन, दिस इज मैप ऑफ इंडिया. ओके, तो यहाँ पर ये जो है ये पूरा पाकिस्तान का मैप है, एंड दिस वन जम्मू एंड कश्मीर रीजन. ओके, सो यहाँ पाकिस्तान के मैप में ये वाला रीजन देखना, दिस वन NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस. ओके, यहाँ इस पर्टिकुलर रीजन में एक जो फेमस है वहाँ के जो पॉलिटिशियन जो लीडर जो थे दैट वाज दिस पर्सन खान अब्दुल गफर खान. ओके, इज रिगार्डेड एज दी फ्रंटियर गांधी. ओके, काफ़ी गांधी जी के काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे, राइट. इन्होंने बिल्कुल टू नेशन थियरी को टोटली कंडेम किया था. ही वांटेड दैट दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेड. ओके, ऑल्दो इज मुस्लिम बट एंड बिलोंगिंग टू द मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन, बट स्टिल ये जो रीजन जो था ये नहीं चाहता था कि यहाँ के जो लीडर जो थे, पॉलिटिशियन जो थे, ये नहीं चाहता था कि टू नेशन थियरी को अडॉप्ट करें. बट ऑफकोर्स मेजॉरिटी जो था दैट वॉज नॉट फेवर ऑफ हिम, तो अल्टीमेटली इनका जो डिसीजन जो था दैट वॉज रिजेक्टेड एंड टू नेशन थियरी वॉज adopted. Okay, so this was the second one. The third one is that third problem was that two of the Muslim majority province of British India, Punjab and Bengal, okay, had very large areas where the non-Muslims were in majority. यहाँ पर मैप में देखना, दिस रीजन, यहाँ पर पंजाब वाला रीजन और बंगाल वाला यहाँ रीजन में, यहाँ पर क्या था, बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर लोकेशन में यहाँ पर ऐसे लोग थे बेसिकली नॉन मुस्लिम एरियाज़ काफ़ी थे. ओके, सो यहाँ पर मुस्लिम तो है पर यहाँ पर नॉन मुस्लिम एरियाज़ भी काफ़ी है. ओके, सो यहाँ पर जो था दिस वॉज लेटर ऑन डिसाइडेड. 15 अगस्त को ही यहाँ पर क्लियर बाउंड्री डिमार्केशन नहीं हुआ था इस रीजन में. ओके, दिस वॉज डन लेटर ऑन. फाइन, 17 अगस्त को यहाँ पर ये जो बाउंड्री जो था दैट वॉज फाइनलाइज्ड. दैट वॉज यहाँ का जो बाउंड्री है ना ओवर हियर, दिस पंजाब रीजन साइड एंड दिस बांग्लादेश, यहाँ पर जो बाउंड्री है इसको कहा गया था रेड क्लिफ लाइन. ओके, सो दिस वॉज डन. सो बेसिकली इस रीजन से हुआ ये था, सिंस यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स भी काफ़ी ज़्यादा था, तो लेटर ऑन इट वॉज दैट थ्रू दैट रेड क्लिफ लाइन जो बाउंड्री क्रिएट किया था, दैट एक प्रॉपर बाउंड्री कमीशन सेटअप किया था फॉर बोथ द प्रोविंस पाकिस्तान एंड इंडिया, जिसके जो चेयरमैन जो थे वो दैट वॉज सर रेड क्लिफ. ओके, सो बेसिकली सिंस ये उस बाउंड्री डिमार्केशन के कमीशन के चेयरमैन थे, तो इनको फिर ये जो लाइन जो था बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दिस इज एक्चुअली known as Radcliffe line. Okay, now the fourth problem was this one, that is the problem of minorities on both sides of the border. See, because of partition, lakhs of Hindus and Sikhs in the area that were now in Pakistan, okay, and an equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal, and to some extent Delhi and surrounding areas, found themselves trapped. Okay, so ये एक fourth problem था.
Now let's look at the consequences of partition. The first consequence is that killings and atrocities on both sides of the border increased. Okay, बहुत ज़्यादा killings हुए थे वहाँ पर, atrocities, cruel acts हुए थे, that increased a lot during this this partition process, this migration of people from Pakistan to India, from India to Pakistan. Okay, and second thing is that cities like Lahore, Amritsar, Kolkata, they become communal zones, divided into communal zones. Okay, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो communal basis में बहुत ज़्यादा rights वगैरह होते थे, and both the communities they avoided going to each other's area because of this conflict. Okay, and migrants का तो और भी problem था, जो minorities जो थे, okay, minorities those belonging to Sikhism group, Buddhism, Jainism, जो different और other minorities जो थोड़े लोग जो थे, they faced a lot of problem. And on both the sides जो minorities जो थे, of course in Indian side जो Muslim minorities हैं, and in Pakistan side जो Hindus, एक different minority groups हैं, they spend a lot of time in temporary refugees camps on both the sides. Okay, and women के साथ भी बहुत ज़्यादा torture हुआ था. Okay, and बहुत ज़्यादा like for example they were abducted. जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में कोई हिंदू वुमेन अगर चले गए तो उनको अबडक्ट कर लिया तो दिस वुमेन एक्चुअली शी वाज फोर्स टू मैरी दैट अबडक्टर एंड फोर्स टू चेंज द रिलीजन. एंड सेम वे इस तरफ इंडियन साइड भी हुआ कि बहुत ज़्यादा जो इंडियन जो अबडक्टर्स जो थे जिन्होंने मुस्लिम वुमेन को कंट्रोल किया था, दे एक्चुअली फोर्स दैट वुमेन to change the religion, to marry. So basically forced marriage, forced religion conversion जो थे, that was done a lot during this time period. Okay, उनके against बहुत ज़्यादा violence भी हुए थे. Now जो writers, poets and filmmakers जो थे in both India and Pakistan, they expressed their feelings about this, whatever the things went on during this partition time, everything, all those experience, the killings, the sufferings of displaced and violence in their work, novels, in short stories, poems and films. Okay, and see partition में जो था, that was not just merely the division of properties, liabilities and assets, political division, administrative apparatus division. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें डिवाइड हुआ था. फॉर एग्जाम्पल द फाइनेंशियल एसेट्स वर डिवाइडेड. ओके, जो एसेट जो था उसको भी डिवाइड किया. जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो थे रेलवेज में डिफरेंट एरिया में, दैट वाज आल्सो डिवाइडेड. फाइन, बहुत सारी जो भी मटेरियल जो थे दैट वाज आल्सो डिवाइडेड. फॉर एग्जाम्पल टेबल्स, चेयर, टाइपराइटर, पेपर क्लिप्स, बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, all these things were divided. Okay, and see partition actually forced nearly 80 lakh people to migrate across the new border. Between 5 to 10 lakh people were killed in partition related violence. Okay, so this is all about in this particular part. In part 2 video we will discuss about integration of princely states. Thank you for watching this video.